Hello and welcome to all. I'm Prashant, and this is going to be a very important video for you if you are interested in answer writing. Okay, and of course answer writing को सबसे पहले important है. Okay, और ये वीडियो है how to write an impactful introduction. मैं इसमें आपको 5 different ways बताने वाला हूँ with practical examples by taking the previous year questions कि हम हमारा इंट्रोडक्शन जो हम आंसर में होता है उसको कैसे अच्छे कर सकते हैं. ठीक है. So I have already released one of the video on the answer writing where we had discussed the characteristics of a good answer. What is a good answer? How toppers write an answer. Okay. Now in that answer we had discussed that introduction, body and conclusion. These three things are very important for writing an any answer. The structure should be followed. Now the introduction is the beginning of an answer. Okay. Now how to make that introduction itself impactful? How to impress that particular paper checker with this particular introduction? That's what we are going to discuss in this particular video. Okay, so चलो इस particular video को start करते हैं. Do not miss any point. I am going to tell you these 5 different ways in which we can make our impactful introduction. Now before we start this, okay, एक point ये आता है कि sir why introduction matters, why introduction is so important, because the main part of the answer is of course a body part. Okay, so we should be discussing that. Of course we will be discussing that also in future, but even introduction, even every part of your answer is important, but introduction भी एक काफी important aspect है. क्यों है? First of all, probably this is the only part of your answer that paper checker is surely going to read. Probably वो कंक्लूजन ना भी पढ़े या बॉडी पार्ट में भी कुछ चीजें ना पढ़े, बट वो इंट्रोडक्शन आपके आंसर का पढ़ने ही वाला है बिकॉज इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द आंसर. सेकंड, introduction catches the attention of the paper checker, and of course if introduction is good, introduction is probably different than the other aspirants. Okay, it's not that trite and platitudinous introduction, then probably it will create better impression in the mind of that particular paper checker, और उससे एक perception जो है अच्छा create होता है आपके आंसर के बारे में. ओके, अच्छा अगर उसमें आप कुछ लिखते हो, इंट्रोडक्शन में अलग कुछ लिखते हो, तो उसको एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉलेजेबल, नो दिस पर्सन हैज सम नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स, और फिर आगे का आंसर चेक करते वक्त दे विल हैव डिफरेंट परसेप्शन, दे माइट गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर, एंड देन ऑफकोर्स जब ऐसा आप करते हो तो इट कैन ऐड एन एक्स्ट्रा मार्क टू योर आंसर. कि शायद अगर आपको पहले इंट्रोडक्शन के लिए हाफ मार्क मिल रहा है तो इसमें 2 मार्क मिल सकते हैं, 1.5 मार्क मिल सकता है, तो ये और एक्स्ट्रा मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक आंसर का भी हाफ मार्क भी अगर एक्स्ट्रा आपको मिलता है अच्छे इंट्रोडक्शन से, तो एक कंप्लीट पेपर में 10 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, और यही हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट अगेन टू कम टू आवर पार्ट, जनरली एक सिंपलेस्ट वे होता है इंट्रोडक्शन राइट करने का, विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फॉलो इन 80% ऑफ द आंसर्स. एंड व्हाट इज दैट? डिफाइन द कीवर्ड इन द क्वेश्चन. कीवर्ड दिया होता है कुछ क्वेश्चन में, उसको डिफाइन करो. ठीक है, या उसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ लिखना. ओके, नाउ आई एम नॉट सेइंग, जैसे मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ क्वेश्चन देखे, एज आई टोल्ड यू एवरीथिंग दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, और जो भी मेरे वीडियोज होते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ. ये देखिएगा, रिसेंट एग्जाम का ही आपका मेंस का क्वेश्चन है. एंड व्हाट डज दिस मेंस क्वेश्चन एक्चुअली से? ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री एंड हाउ इनकम ऑफ फार्मर्स कैन बी सब्सटेंशियली इंक्रीज by the encouraging the food processing. Now if you see this question is about food processing. Now most of the students will एक हमारा रेगुलर वे क्या होता है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग है सेक्टर, इसको डिफाइन कर दो कि व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग. एक सिंपलेस्ट वे है ऑफ गिविंग द इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग आप कह सकते हो इज ट्रांसफॉर्मिंग द फ्रेश एंड रॉ मटेरियल, ओके, into the products which are ready to eat or ready to sell something, इसको हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं. ये सिंपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे. Okay, now I'm not saying this is a wrong introduction. Okay, this is a right introduction as such, even relevant introduction, but it is not effective. It is not wrong, but it is not effective also. I'm not even saying कि ये यूजफुल नहीं है. Yes, ये कीवर्ड डिफाइन करने का इंट्रोडक्शन यूजफुल भी है काफी सारी जगह पे, स्पेशली अगर आपका जीएस पेपर फॉर एथिक्स, उसमें कुछ टर्म्स आप डिफाइन करते हो. समटाइम्स पॉलिटी में भी कोई कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, उसमें टर्म्स डिफाइन करते हो. तो आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट यूजफुल, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट इट इज नॉट दैट इफेक्टिव ऑल्सो. ओके, इतना ये इफेक्टिव भी नहीं है. कुछ क्वेश्चन में आपको इसका रिलेवेंस ज्यादा हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, डिफाइन द पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट डिटर्मिनेंट्स, एंड देन समथिंग एल्स इज आस्क्ड अहेड. अब यहाँ अगर खुद ही कहा पूछा गया है कि पोटेंशियल जीडीपी क्या बताइए, ओके, सो इट्स, यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली
राइट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। इनफैक्ट इसको भी आप और इफेक्टिव क्रिएट कर सकते हो, कैसे वो मैं आपको बता सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना याद रखिए। ओके चलो, अब यहाँ अगर आपको अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है तो क्या कर सकते हैं सिंपलेस्ट वे में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन, आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन वगैरह लिखने से अच्छा है कि आप कुछ डेटा दे सकते हो, यू कैन गिव सम डेटा। ओके, फॉर एग्जांपल इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आप ऐसा लिख सकते हो कि इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $535 billion, $535 billion बाय 2025-26। ये एक डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, कुछ सर्वे से, तो ऐसा कुछ आप कोट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट द इंट्रोडक्शन विद दैट और फिर आगे का आंसर आपका आ जाएगा, तो इट विल मेक योर आंसर मोर इफेक्टिव। ओके, तो एक बस मैंने एक आपको तरीका बताया कि जो ट्रेडिशनल यूज किया जाता है, बट उसको भी हम कैसे इंप्रेसिव कर सकते हैं। यहाँ डिफाइन द पोटेंशियल जीडीपी। नाउ इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग दी, अब आप डिफाइन करोगे पोटेंशियल जीडीपी, बट उसके साथ साथ अगर पोटेंशियल जीडीपी के रिगार्डिंग आपके कुछ फिगर है तो ये भी आप लिख सकते हो। या नॉर्मल आपका नॉमिनल, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कुछ डेटा है तो उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो, बट वी विल डिस्कस दैट। ओके, अब कुछ सबसे पहले कुछ चीजें जो है, कुछ पॉइंट्स है दैट यू शुड रिमेंबर ओवर हियर। फर्स्ट थिंग, जो सिंपल इंट्रोडक्शन होता है ये कोई गलत नहीं होता है, जिसमें आप डिफिनेशन देते हो या कुछ क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हो, दिस इज नॉट रॉन्ग। ओके, ये कोई गलत नहीं है, और काफी सारे क्वेश्चन में इसको लिख, हर यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन अलग कुछ नहीं हो सकता, कुछ इसमें आपको सिंपल इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो इट्स नॉट रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर हमें कुछ अलग इंट्रोडक्शन नहीं, वी आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट सम अदर डिफरेंट इंट्रोडक्शन, तो उसमें 2-4 आपने टाइम मिनट गंवा दिया, ऐसा नहीं होता। सिंपल इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हो, बट उसको और इफेक्टिव कैसे करना है हमें देखना। ओके, सेकंड, इंट्रोडक्शन हमेशा रिलेवेंट रखिएगा, जो टॉपिक पूछा गया उसके रिगार्डिंग वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कहीं अलग कुछ करने के इससे आप इंट्रोडक्शन अपना खराब मत करना, उसको रिलेवेंट रखना विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक। नहीं तो सर ने कहा है कि इंपैक्टफुल रखना है, 5 डिफरेंट वेज ही हैज टोल्ड, वी आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट दोस वेज, तो कुछ अलग लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। इट शुड बी रिलेवेंट टू द व्हाट इज आस्क्ड। ओके, कीप इट शॉर्ट, इंट्रोडक्शन को आपको शॉर्ट रखना है। अगर लेट्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन तो काफी शॉर्ट रखना है आपको, एक 2-3 लाइन में लिख दीजिएगा। 15 मार्क्स के तो मे भी थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट देके और कुछ लिख सकते हैं, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा, बट इसको शॉर्ट रखना है। ओके, एंड देयर आर सर्टेन थीम्स विच कुड बी रिकरिंग थीम्स इन योर एग्जाम। ओके, एथिक्स के बारे में, या फिर जीएस पेपर 2 के बारे में है, जीएस पेपर 1 के बारे में है, ऐसे कुछ होते हैं कि जो रिकरिंग थीम्स होते हैं उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको भी पता है कि पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स में कुछ फ्रीक्वेंट टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर वन नेशन वन इलेक्शन है, आपको पता है कि दिस इज इन करंट अफेयर्स, कुड बी आस्क्ड इन मेंस, जो ऑलरेडी पूछा गया आपको यूपीएससी द्वारा, ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड इट, बट जो भी फ्यूचर टॉपिक है तो उसके इंट्रोडक्शन जो है रेडीमेड अपने पास रखिएगा, कि इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आई कैन राइट द इंट्रोडक्शन। दैट्स हाउ यू शुड बी एक्चुअली प्रिपेयरिंग। ओके, चलो ये सब बैकग्राउंड तो मैंने अब बता दिया। नाउ विल कम टू द पॉइंट कि व्हाट आर डिफरेंट 5 वेज इन विच वी कैन मेक आर इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन। तो 5 वेज क्या है? एक, यूजिंग डेटा एंड फैक्ट्स। सेकंड है करंट इवेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन को लिंक करना। थर्ड, कोड जजमेंट्स एंड आर्टिकल्स। ओके, फोर्थ, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, एंड फिफ्थ इज कोट्स। ओके, तो अब इसके मैं आपको एग्जांपल जो है एक एक समझाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, अगेन रिसेंट क्वेश्चन है मेंस का, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर, दिखेगा डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइंड दिस पर्टिकुलर मेनेस। नाउ साइबर क्राइम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, यू कैन डिफाइन द साइबर क्राइम, यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम एंड समथिंग, ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो सकता है। बट कैन वी यूज डेटा और फैक्ट्स? डेटा और फैक्ट्स मतलब क्या होता है, क्या यूज कर सकते हो? उसमें कुछ सर्वे है वो यूज कर सकते हो, उसके पास कुछ एग्जैक्ट आपके पास कुछ नंबर्स है ये यूज कर सकते हैं। ओके, कुछ कमिटी का अगर रिसेंट कोई रिपोर्ट है वो यूज कर सकते हो। मल्टीपल थिंग्स कुड बी यूज लाइक दिस इन डेटा एंड फैक्ट्स। ओके, सो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज साइबर क्राइम, यहां मैं डेटा एक यूज कर सकता हूं, इफ आई नो दिस व्हाट इज दैट डेटा, कि अकॉर्डिंग टू द I4C टोटल फाइनेंशियल टोल इंफ्लिक्टेड बाय साइबर क्रिमिनल्स ऑन इंडियंस फ्रॉम जनवरी टू द अप्रैल 2024 रीच्ड 176 करोड़। अब यहाँ साइबर क्राइम के रिगार्डिंग आपने साइबर क्रिमिनल के रिगार्डिंग बस एक डेटा दे दिया, विच इज क्वाइट रेलेवेंट ओवर हियर। Okay, instead of defining cyber crimes, because 90% of the students are going to do that, or either they are going to give certain examples of that. Okay, अब ये सब डेटा कैसे आएगा सर? ऑफ कोर्स आपके पास ये रेडीमेड होना चाहिए कुछ एस्पेक्ट्स में। ओके, चलो, दिस इज वन वे दैट यू कैन कनेक्ट योर इंट्रोडक्शन विद सम सॉर्ट ऑफ डेटा, फैक्ट्स, कमिटीज, सर्वेज, इसके रिपोर्ट्स है उसके साथ आप यह स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन रेडीमेड होनी चाहिए, विद थ्रू आउट द प्रिपरेशन यू कैन डू दैट।
एटलीस्ट ऑन रिकरिंग थिंग्स. ओके, सेकंड होता है एंड विच कुड बी अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन, दैट करंट इवेंट के साथ उसको लिंक कर दीजिएगा. करंट न्यूज अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ आपको पता है तो लिंक दैट देयर. इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट इवन बेटर इंप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनर, with respect to paper checker. ये देखिएगा, this question is regarding the left wing extremism, LWB. internal security का question है, what are determinants of the left wing extremism in eastern part of India, what strategy should government India adopt and all that. okay, ठीक है, fine. अब what are determinants of left wing extremism in eastern part of India, अब यहाँ directly LWB या नक्सलिज्म डिफाइन करना है. उससे अच्छा आपका इवेंट इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि अगर आपके पास कोई रिसेंट न्यूज है रिगार्डिंग दी नक्सलिज्म तो ये आप यहां दे सकते हो. अगर हमारे होम मिनिस्टर है उनका कोई स्टेटमेंट है, अगर रेड कॉरिडोर में कुछ चेंज हुआ है तो वो रिसेंट न्यूज है. इफ सम नक्सल अटैक अनफॉर्चुनेटली हैज हैपेंड समवेयर, उसका कोई न्यूज है तो उसके साथ स्टार्ट कीजिए ना आपका इंट्रोडक्शन. द इंट्रोडक्शन विल बी इवन मोर वी कैन से इफेक्टिव. जैसे उसका और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी का देयर इज वन मोर क्वेश्चन, या आईआर इंटरनल सिक्योरिटी का एक और क्वेश्चन है दिखाया गया. ये क्या है, terrorism has become a significant threat to the global peace and security. Evaluate the effectiveness of United Nations Security Council's Counter-Terrorism Committee and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level. Okay, so basically the role of the UNCTC has been asked. United Nations Security Council's Counter-Terrorism Committee has been asked. इसका रोल आपको पूछा है. Okay, अब इसको can I connect with the current event? Yes. Because if I am aware about current affairs, I am reading newspapers, so I am even if let's say I am not reading newspapers, but I am reading some current affairs magazine, I will know this. कि recently first meeting of the UNSCTC was held in India. इतना भी लिख दो कि recently first meeting of the UNSCTC was UNSCTC was held in India. It is going to create a better impression on the examiner. Current event के साथ आपने इसको जो है connect कर दिया. और अगर आगे थोड़ा सा थीम वगैरह याद है कि the main theme of the discussion was new and emerging technologies for terrorist purpose, even better. Okay, so I am not expecting you will write such kind of introductions in each and every question answer, but at least अगर 20 questions है आपके पास तो 10 में तो ऐसा ट्राई कीजिएगा. ठीक है, और जिसके लिए आपको ऑफकोर्स पहले ही प्रिपेयर करके रखने होंगे ऐसे इंट्रोडक्शंस वगैरह या कुछ न्यूज के रिगार्डिंग. अब ये देखिएगा और एक एग्जांपल है जिसको आप करंट इवेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो. बिकॉज करंट इवेंट के साथ कनेक्ट करना इजियर भी कई बार होता है, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, स्पेशली इन जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2. ओके, फाइन. Examine the need of electoral reforms as suggested by the various committees with particular reference to the one nation one election principle. अब one nation one election principle के बारे में क्वेश्चन है and other electoral reforms. Okay, you can simply quote any news regarding one nation one election. Multiple committees, multiple all these things will come. तो यहाँ आप लिख सकते हो. Recently, you know that Union Cabinet has given the approval for conducting the simultaneous election. Cabinet has given the approval. अभी उसमें lots of changes has to happen in constitution, other things, but Union Cabinet has given the approval. So you can write that. Okay, fine, fine. और या रामनाथ कोविंद कमेटी जो है उसके बारे में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है. Okay, so there are multiple such things जो है इसके बारे में जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो. ठीक है, ऐसे मल्टीपल एस्पेक्ट जो है इसके कहीं ना कहीं है. फाइन, अब थोड़ा सा ठीक है, यहां तक हमने देख लिया है. अब ऐसे ही है मैं आपको ऐसे ना जाने कितने एग्जांपल दे सकता हूं. जैसे ये मॉलडीव्स पे दिया गया है, इंडिया मॉलडीव्स रिलेशन पे एक क्वेश्चन है. अब मॉलडीव्स के बारे में तो सबको न्यूज में पता है. इवन अ पर्सन हु इज नॉट स्टडीइंग फॉर यूपीएससी दे नो कि आवर प्राइम मिनिस्टर हैड गॉन इन लक्षद्वीप, ही हैड पोस्टेड सम फोटोग्राफ एंड देन मॉलडीव्स हैड डन सर्टेन थिंग्स, या इंडिया आउट कैंपेन वगैरह है, तो उसके बारे में आप जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट ये एक होता है इंट्रोडक्शन लिखने का, वो है कोड जजमेंट्स, जो थर्ड वे है. आर्टिकल्स स्पेशली पॉलिटी के, सोशल जस्टिस के, ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में कोड जजमेंट्स एंड आर्टिकल्स कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ऐसे कुछ कोड जजमेंट्स की इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स के आपके पास लिस्ट होना चाहिए. आर्टिकल्स तो जनरली इफ यू आर गिविंग प्रीलिम्स एंड क्लियरिंग प्रीलिम्स, mainly important articles you can actually remember. For example, this question is regarding the public interest litigation in India. Now in this question, one of the way of writing is to define what is PIL. Okay, but then if you want, now everybody can define the PIL, but अगर आपको इसको और ज्यादा इफेक्टिव करना है तो मे बी यू कैन गिव अ कोर्ट जजमेंट ओवर. फॉर एग्जांपल, या केस के बारे में कोई कोर्ट जजमेंट है, कोई कोर्ट के इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क केस है, आर्टिकल से ये जज कर दे सकते हो. फॉर एग्जांपल,
हुसैनरा खतून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. Okay, this was a case of 1979. Okay, that was perhaps the first reported case of PIL in India. अब if you study the PIL as a static part, generally ये इतना तो डेटा हमारे पास होता है, you can write it there. Okay, अब यहाँ PIL का डेफिनेशन ही लिखोगे तो कोई गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट इट विल मेक इट मोर इंप्रेसिव. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा इंट्रोडक्शन लिखना है 3-4 लाइन में, तो यू कैन डिफाइन PIL also कि व्हाट इज PIL. It is a litigation filed in the court of law, okay, for the protection of the public interest. Okay, simple, right? And then उसके बाद केस को आप यहाँ कोट कर दीजिएगा, your answer could be better. Okay, यहाँ क्वेश्चन है CAG के रिगार्डिंग, कैग के रिगार्डिंग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिगार्डिंग. तो यहाँ CAG के रिगार्डिंग आप कोई आर्टिकल कोट कर सकते हो कि आर्टिकल 149 है, डील्स विद द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द CAG ऑफ द इंडिया. ओके, फाइन फाइन. तो इसी तरीके से या इसको करंट इवेंट के साथ भी लिंक कर सकते हो. ओके, जो भी आपके लिए सही होगा, योर इंट्रोडक्शन कुड बी बेटर. तो अभी तक हमने 3 ways वी हैड सीन. 1 डेटा एंड फैक्ट्स, 2 इवेंट्स, 3 कोर्ट जजमेंट्स एंड आर्टिकल्स व्हिच इज मोर रिलेवेंट इन द पॉलिटी, सोशल जस्टिस वगैरह के, इसमें ज्यादा रिलेवेंट है. देन 4th वे व्हिच इज मोस्टली इग्नोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, the importance of this introduction is mostly ignored by students, is historical aspect. The historical aspect of the topic that is asked in question could be written in the introduction. Okay, especially international relations के कुछ क्वेश्चंस है, इसमें काफी अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है. बाकी भी इसमें हो सकता है, बट बाकी सोशल एस्पेक्ट्स में भी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी हो सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल, इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. ओके सर, पता है, वी नो दैट. ओके, फाइन. चलो, discuss India's role in recent crisis in Sri Lanka in the light of preceding statement. You will have to discuss the role of India in recent crisis in the Sri Lanka. Okay, fine. और क्वेश्चन के शुरुआत में भी बताया गया है कि इंडिया इज ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. तो आप कोई पास्ट रिलेशन के साथ स्टार्ट करना ना, कि हाउ ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका इज इंडिया. तो आप लिख सकते हो कि इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस go back to the King Ashoka's time and even Sangam age, when India established the cultural and political relations with the Sri Lanka. इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो. ओके, तो ये कॉन्टेक्स्ट में इनफैक्ट ज्यादा सूट होता है. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यू विल हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन इन दिस क्वेश्चन थ्रू हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. दिस इज वन ऑफ द वे. इसमें एक्चुअली और एक क्लू है हमें इंट्रोडक्शन राइट करने का, रिसेंट क्राइसिस. तो यू कैन राइट अबाउट द रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका. ओके, फाइन. डिपेंड करता है, बट अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो मैं आपको ये कह देता कि रिसेंट क्राइसिस के बारे में 1 लाइन 2 लाइन लिखिएगा. ये 10 मार्क्स का है. ओके, 15 मार्क्स का है. एंड देन राइट समथिंग अबाउट दी, वी कैन से दिस ओल्ड एज रिलेशंस आल्सो. ओके, सो हियर 3-4 लाइंस के इंट्रोडक्शन इज ओके इफ 15 मार्क्स क्वेश्चन इज देयर. फाइन फाइन. चलो, अब ये देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है. कैन वी यूज द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हियर? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस टू द मल्टी डायमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स of doubts. The question is regarding the interlinking of rivers. Okay, and you will have to tell the positive and negative sides of the interlinking of rivers. Okay, now what is interlinking of rivers? Everybody is going to define it, but can I connect it with something else? अब यहाँ, because we are discussing historical aspect, so can I connect it with historical aspect? Yes, you can. Okay, so you can say कि interlinking of river was conceived in India even during the pre-independence time. Okay, कैसे? It was Arthur Cotton who proposed connecting the major rivers of India to address the shortages. So Arthur Cotton, during the pre-independence time, he had actually talked about this and proposed this. The major rivers in the India should be, we can say, connected for addressing the issues of the shortage and droughts in the, especially in South India, because in South India the perennial rivers are not there like in North India. Okay, तो उसके साथ भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे. Okay, and sir, then how will you come to know about Arthur Cotton? Because interlinking of river is important topic, static and current affairs का टॉपिक है. ओके, तो उसको जब आप स्टडी करते हो तो जनरली इवन इन करंट अफेयर्स मैगजीन आल्सो ये पर्टिकुलर थोड़ा हिस्ट्री उसमें होता है, ये सारी चीजों का. तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. ओके, एंड देन लास्ट वे, ओके, दैट इज राइटिंग कोट्स. ओके, जो कि आपको ऐसे में तो ऑफ कोर्स यू स्टार्ट विथ कोट्स, राइट? ऐसे में होता है, एवरीबडी हैज टोल्ड यू. ओके, और ऐसे में तो आजकल कोट्स ही पूछे जाते हैं काफी बार. बट देन दिस कैन बी यूज्ड इन जीएस आंसर्स आल्सो, स्पेशली यू कैन यूज दैट इन पॉलिटी आंसर्स, सोशल जस्टिस आंसर्स, और सबसे ज्यादा तो ये आप यूज कर सकते हो एथिक्स के आपके आंसर्स में. फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स
on which one can plot the performance of civil servant, justify their inclusion in the matrix. अब यहाँ एथिक्स को डिफाइन कर दो ना, या एथिक्स के रिगार्डिंग कोई एथिक्स को डिफाइन करने से अच्छा एथिक्स के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई कोट है तो यू कैन राइट दैट. ओके, फॉर एग्जांपल एक कोट जैसे होता है कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू. यू कैन राइट दैट एंड देन बाकी आगे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके आपका आंसर जो है लिख सकते हो. सो these are the 5 different ways, as we can say and we have discussed, through which we can actually make our introduction more effective. That is data, facts, current events, court judgments and articles, historical aspects and quotes. Okay. और ये काफी डेप्थ में मैं आपको एक्चुअली लेके जा रहा हूँ हर एक एस्पेक्ट के आंसर राइटिंग के, which will make your answer writing even better. Okay, so if you like this particular video, do join my telegram channel also. Telegram channel का link जो है that has been given in the description section. You can like the join the telegram channel over there. उसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू.